Good morning, student. This is the new chapter from the ninth class. Why and what democracy? सबसे पहले we have to know about the what is the meaning of the democracy. So I would like to tell you. I know you all are knowing about this one. Democracy is a form of government where the people they are having the rights to choose their representatives. They have right to give the vote and all the things. There are so many things that they can do. So this is not a very, you can say, the new chapter for all of you. I know you are having the knowledge about all the things whatever we are having here earlier. So there are some key terms that we are going to discuss here. First is the democracy. Definition of democracy I have given to you. Then we are having universal suffrage. I know you are also knowing about this one, that adult franchise, voting rights. यूनिवर्सल सफरेज या एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है कि द पीपल ऑफ दैट कंट्री देर हैविंग द राइट ऑफ वोट मीन्स through the vote they can choose their representative and all the things whatever they want to do. Elected official next term is elected officials का मतलब होता है कि उस देश के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अहम मंत्रालय हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, these all ministries are given to those persons they are elected by the people. Fine. जैसे कि राजतंत्र में होता है किसी को बिठा दो, किसी को बैठा दो, किसी को बिलाओ. Here it cannot be possible. If you choose someone, they have to be the part of that part for a time period. Next is here rules of law. 7th का topic है rules of law. In India, if you are having a democratic country, not even in India, even the whole world, so there are the constitution. In the constitution, everything is written, rules of law. Through that rules and law, the country will be ruled by the people. Those that are having the responsibility, either the prime minister or president, which form of the government, it's up to country, which type of the government they are choosing for running the country. So all the members, all the people, all the organization, they have to work according to the law. Fine. Next is non-democratic government. Opposite है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं वो आपको नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं मिलेंगी. पीपल दे आर नॉट हैविंग द वोट, पीपल कांट चूज द पीपल, दोज दे आर गोइंग टू रूल फॉर देम, you are not having any type of the rights and all the things. There are so many things that you have to do. Fine. Next we are having here merits of democracy. So merit of democracy में हमें समझना पड़ेगा कि हमें पहले करना क्या है. Merit of democracy के लिए first we have to go, I'm just writing here some points. First is here voting, means through the vote everyone will be elected, those they are going to rule over the country. Doesn't matter that is the police force, that is the prime minister or someone else. Fine. Second, all the citizen they are protected by constitution. Fine. कोई दया नहीं है, कोई भीख नहीं है कि सरकार हमारे को ये दे रही है वो दे रही है. वी आर द पीपल ऑफ दैट कंट्री, सो दैट इज आवर राइट. वी मस्ट टेक ऑल द थिंग्स. फाइन. देन इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए. ये भी तभी पॉसिबल है अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री हुई, तभी सारी चीज़ें हो पाएंगे, नहीं तो सारी चीज़ें क्या है, मुश्किल है. ठीक है. जस्टिस सिस्टम. फाइन. जस्टिस सिस्टम है जिसको न्यायपालिका कहते हैं, दैट शुड बी ऑल्सो वेरी फ्री. इफ द जस्टिस सिस्टम इज नॉट फ्री, so the judges are not able to their works and they will work according to the government. हम यहाँ पे श्योरिटी नहीं देते कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जस्टिस सिस्टम बिल्कुल सही होता है.
पर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा हो, मेरिट से। फिर इक्वालिटी इन ऑल फील्ड, ठीक है। डेमोक्रेसी होने से एक फ़ायदा होता है आपको कि चारों तरफ हर चीज़ में आपको इक्वालिटी मिलती है, स्कूल में, नौकरी में, इलेक्शन में, आप कहीं भी जाएंगे आपको हर जगह क्या मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी। एंड कंट्री इज रूल बाय लॉ, ठीक है। देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री, so you cannot say that कि this or that rule is made by personally. There is a system, you know about that one, how the bill can be passed and how can the law become. All the rules you are knowing, if you are not knowing, I will clear you in the next topic or the next time. So everything, whatever the decision, whatever the things, whatever the anything is happening, all the things will come according to the law and order. Neither prime minister nor president is free to take their own decision. Whatever they have to do according to laws. So अभी तक we talked about the benefits of the democracy. Now we are going to talk little bit demerits of the democracy. I told you earlier कि राम राज्य पॉसिबल नहीं है, डेमोक्रेसी के अपने फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है, डिक्टेटरशिप के अपने कुछ फ़ायदे हैं तो आपके कुछ नुकसान है। तो बीइंग अ स्टूडेंट इट्स आवर मोरल ड्यूटी दैट वी हैव टू टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट बोथ, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट वी हैव टू टेक ऑल द नॉलेज अबाउट दैट राइट एंड रॉन्ग। बीइंग अ स्टूडेंट दिस इज योर मोरल ड्यूटी, ठीक है। चलते हैं आगे, कमियों के बारे में बात करते हैं। लीडर्स आर नॉट फिक्स, ठीक है। लीडर हमेशा चेंज होते रहते हैं। नुकसान बहुत बड़ा होता है देश को। इफ somebody is having here, they are having their own opinion and their theory, their plan, but after 5 minutes when they lose the election, all the plan and all the thoughts vanish. देश फिर उसी जगह पे खड़ा होता है और फिर से वहाँ पे एक दोबारा चुनाव होता है, फिर एक नया थॉट का व्यक्ति आता है, फिर उसको आगे बढ़ाता है, फिर वही 5 साल बदल जाता है, और इस तरीके से समस्या हमेशा चलती रहती है, जिस वजह से देश हमेशा पीछे ही रहता है। मोरालिटी का कोई स्थान नहीं होता। नेता अपनी मर्जी से करते हैं, ना गरीब देखते हैं ना अमीर देखते हैं, भले पॉलिसी बनाते हैं। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोरोना राइट नाउ, दे आर सेइंग हम इतने लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ द फैसिलिटीज एंड ऑल द थिंग्स, नो वन विल बी एबल टू you can say that he live in the poverty, but still we are finding lots of problem there on the road with the poor people. So वही चीज़ है, result comes late। किसी भी चीज़ में रिजल्ट बड़ा लेट आता है। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, क्विक एक्शन नहीं हो पाता, तब तक उसका फ़ायदा उठाया जाता है। जस्टिस सिस्टम को देख लीजिए, निर्भया का कांड देख लीजिए, कितनी मुश्किल से फांसी हुई। दंगों के लिए कोई कानून बनाना है कितनी दिक्कत होती है, कोई एक छोटा सा कानून बनाना है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट कम्स वेरी लेट, यू नो अबाउट दैट वन, फाइन। रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। होता क्या है, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं लोग, पता नहीं होता फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दैट, कुछ लोगों का फ़ायदा हो बाकियों को नुकसान हो जाए, हमारी पार्टी है, हमारे लोगों का फ़ायदा है, तो ऐसे थॉट्स के साथ लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़े से फ़ायदे के लिए बहुत सारे लोगों का नुकसान कर देते हैं। तो डिसीजन गलत लिए जाते हैं, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए। इस बाद में बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिससे शायद नुकसान और फ़ायदा लोगों को हुआ। करप्शन, ठीक है। करप्शन बहुत होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। दैट इज़ द वेरी बिग, यू कैन से दैट लैक ऑफ
और चैलेंज ऑफ द डेमोक्रेसी। जिसको भी जज बनाया जाता है वही चोर बन जाता है। गवर्नमेंट इज नॉट able to observe all the things what's going on. Who will go on? No one is able to go on them. सब सेल्फिश है। किंग होता तो किंग अपने खुद देखता है, he can take the decision on the spot, but there are not fixed person, they are doing their duty. पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अगला वाला देखेगा, अगला वाला सोचेगा, अगला वाला देखेगा। तो ऐसे ही करप्शन क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है। नॉर्मल पीपल नॉट केयरिंग। ठीक है। जो आम जनता है, आम जनता का कोई नहीं देखता। साहब लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, फेमस लोग हैं, उनकी केयर होगी। पर एक आम जनता जो दवाई की लाइन में खड़ा होता है, पानी की लाइन में खड़ा होता है, बिजली बिल की लाइन में खड़ा होता है, ऐसे लोगों का कोई पूछ नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। क्योंकि ये सत्ता जो है बस चल रही, जैसे मर्जी वैसे चल रही। तो ये कुछ पॉइंट थे डिमेरिट्स की डेमोक्रेसी के अंदर जो हमने डिस्कस किया। फिर सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल टू गिव आंसर। काम हो ना हो पर आंसरेबल होना जरूरी है। तो ये किसके पक्ष में बहुत बड़ा तर्क है। ये सपोर्ट है डेमोक्रेसी के लिए कि somebody is responsible here to give the answer कि why or why not this couldn't happen or can be happen, anything else you can say। जवाबदेही बनती है, कभी किसी को फंसा दिया जाता है, कभी किसी को। तो एक बहुत बड़ा पक्ष है इसके लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे गुड रिजल्ट। डेमोक्रेसी में हमेशा देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, कई टर्म्स की बातचीत होती है, देखा जाता है, समझा जाता है, डिस्कस किया जाता है, कई कई साल तक लग जाते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि शायद निर्णय बेहतर ही है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ राम मंदिर, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल तलाक, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर इशू। ऐसे बहुत सारे इशू हैं, सोल्व हो रहे हैं, आगे भी बहुत सारे हैं, देखिए क्या क्या होता है। फाइट होती रहती है किसी जगह पे। जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनके आपस में लड़ाई होती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि फाइट को, आपस के लड़ाई झगड़े को वी कैन सॉल्व इट इन वेरी नॉर्मल वे विदाउट एनी डिफिकल्टीज। ठीक है। फोर्थ है रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन। ठीक है। ये क्या बताता है कि जो पब्लिक है, देश में रहने वाले लोग हैं, इनका रिस्पेक्ट बढ़ता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो दे आर हैविंग देयर फंडामेंटल राइट्स थ्रू दैट दे कैन डू एनीथिंग वट एवर दे वांट। सो सच काइंड ऑफ द थिंग्स आर देयर। दे कैन प्राउडली सेड दैट आई एम इंडियन एंड इट्स माई राइट्स। तो आप देख सकते हैं कहीं बहुत सारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं, और अभी उठा ही रहे इन द टाइम ऑफ द कोरोना ऑल्सो। हो सकता है मेरी बात थोड़ी गलत हो यहाँ पे, बट सच है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। जब हमारे राइट्स की बारी आएगी तो हम राइट्स की बात करेंगे, पर जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आएगी, ड्यूटीज़ की बारी आएगी, हम उसको नहीं करेंगे। यही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हमें सारी चीज़ें दी है। ठीक है। इम्प्रूवमेंट लास्ट है। इम्प्रूवमेंट। अगर डेमोक्रेसी में कोई गलती हो जाती है बाय द वे, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप उसको कुछ टाइम बाद या अगले टाइम बाद या अगला लीडर उसको चेंज कर सकता है। ठीक है। सो देयर आर सम important points we discussed today about the democracy, merit of the democracy, demerit of the democracy, and what are the reason the people they want to opt democracy. Fine. So for further details
tomorrow we will again meet and we will discuss about that one. If you're having any doubt, you can ask me. Okay.